এখানে তো আমাদের বলার কিছু নেই। তৃণমূল পার্টি কে কত টুকরোতে ভাঙবে বা কে থাকবে, কে নতুন তৃণমূল গড়বে, এগুলো নিয়ে আমাদের খুব একটা কিছু বলার নেই। কিন্তু আজকে এটা খুব অ্যানালিসিস করার বিষয় যে একটা দল মানে এত শর্ট টাইমে সরকারে কেউ থাকতে পারে, পলিটিক্যাল রাজনীতিতে কেউ হারবে জিতবে এগুলো থাকতেই পারে, কিন্তু এত শর্ট টাইমে একটা দল যে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে, এটা যে দলের নীতি বা আদর্শ বা দর্শন থাকে না তারই অবস্থা হয়, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল আর কি। অভিষেককে সরিয়ে কাকলিকে দলনেতা করা যাচ্ছে যে তিনি আজকে ইস্তফা দিলেন, পদত্যাগ করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ববি হাকিম। আমার কাছে ইস্তফার এটা রয়েছে পেজটা। উনি লিখছেন যে in accordance with the provisions of KMC Act 1980, I hereby tender my resignation from the office of Mayor of the Kolkata with immediate effect. It has been a distinct honor and privilege to serve the citizen of Kolkata in this capacity. I remain deeply grateful for the cooperation, support and guidance extended to me by the Honorable Chairperson, the member of Mayor in Council and all the councillors. এখানে পার্সোনাল রিজনস উনি দেখিয়ে করছেন, কিন্তু একবারও যেটা উনি বলছিলেন যে টেলিভিশনে আমি দেখলাম যে উনি বলছেন যে আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, তো সেটা তো একবারও উনি আমাকে জানালেন না। আমি তো এখন মন্ত্রী, পুরমন্ত্রী, তো সেই হিসেবে ওনার আমাকে জানানো দরকার ছিল। দুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করলেন নবান্নে, সেখানেও উনি জানালেন না কিছু। এটা আমার মনে হয় খুব ওয়েল প্ল্যান্ড। ফিরহাদ হাকিমের মতো মহাশয় আমাদের পরশুদিন না গতকাল বিধাননগর যিনি মেয়র তিনি এই করলেন, হাওড়া, সব জায়গাতেই আমরা দেখছি যে একটা খুব প্রবাবলি তাদের সুপ্রিমোর কথাতেই এইটা একটা ষড়যন্ত্র করছেন যে নতুন সরকার এসছে, একটু মানে অসুবিধায় ফেলা যাক, একসাথে সব করা যাক। মানে এটা কমপ্লিটলি একটা কনস্পিরেসি আমার মনে হয় চলছে। কারণ কি 15 বছর তো আপনারা কি কাজ করেছেন ফিরহাদ হাকিম মহাশয়, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা। রাস্তাঘাট মানে চলার মতো অবস্থায় নেই, পার্ক বলুন, জলাশয় বলুন, একদম নোংরা, কোনোদিন কোনো ডেভেলপমেন্টের কাজ হয়নি, জলাশয় বুঝিয়ে বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু 5-10 দিন মতো বাকি বর্ষাকালে সেখানে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন ফিরহাদবাবু। মানে এটাতে কতটা আপনারা সেলফিশ, কতটা ইরেসপন্সিবল। মানে আমার সেই দিনটার কথা মনে হয়, যখন মনে পড়ছে যখন ইডি এসেছিল, আপনাকে ধরে নিয়ে গেল, অ্যারেস্ট করলো, আর আপনি কাঁদতে কাঁদতে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন কলকাতাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों आपका मुलाकात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी सब विरोधी विधायक को बुलाए थे, तब भी आप कुछ नहीं बोले हैं, और आज प्रेस का सामने बंगाल के लोगों का सामने आप दिखा रहे हैं कि आपको काम करने नहीं दिया था। ये सरासर झूठ है, और ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है जो शायद फिरहाद हाकिम जी और विधाननगर के मेयर और सारे जो टीएमसी के लोग जो पदत्याग कर रहे, रिजाइन कर रहे, एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। नया सरकार आया है, उसको एक फॉल्स पोजीशन में उसको धकेल दो, और 10 दिन बाकी है बारिश का, वो संभालने दो। तो मुझे तो यही लगता है। और उस दिन को मुझे याद आ रहा था जिस दिन ईडी पकड़ने, अरेस्ट करने गए थे फिरहाद हाकिम जी को, और फिरहाद हाकिम जी बहुत रो रहे थे, हम कलकत्ता को बचा नहीं पाए। तो आज ये जो कॉन्स्पिरेसी, भाग क्यों गए फिरहाद हाकिम जी, भागे क्यों? 15 साल जो काम आप लोग किए हैं कलकत्ता शहर के लिए, वो तो देखा जा रहा है। रास्ता बर्बाद, पूरा खत्म, वाटर बॉडी बुझा के सब हो गया, बिल्डिंग, पार्क बच्चों के लिए सब गंदगी, या कोई पार्क है ही नहीं। काम तो आप लोग कुछ किए नहीं है। जाने का टाइम अंतत कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाते, लेकिन ये कितना इरेस्पॉन्सिबल ये लोग है, कितना सेल्फिश ये लोग है, ये आज फिर से प्रमाण कर दिए तृणमूल। दीदी एक प्रश्न और है,
देखा गया कि आज ममता बनर्जी के घर पे वहाँ पर कालीघाट में फिर से ममता बनर्जी ने बैठक बुलाया, लेकिन कम संख्या में विधायक पहुँच रहे हैं। क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी के ऊपर बंगाल के लोग की आस्था नहीं है और ममता बनर्जी के ऊपर तृणमूल पार्टी के कोई आस्था नहीं है। जो पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नीति, आदर्श, दर्शन कुछ नहीं है। हाँ, एक ही आदर्श है, वो है लूटना। एक ही आदर्श है, एक ही दर्शन है, वो है सिंडिकेट। लोगों को लूटो, बर्बाद करो, अपना परिवार और अपना क्लोज पीपल का तरक्की हो। उस पार्टी का तो यही होगा। नहीं तो हम लोग तो 2021 की तरह कोई तो पोस्टफुल वायलेंस हुआ नहीं है। हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी कैटेगरिकली बोल दिए हैं कि किसी के ऊपर, कोई टीएमसी के ऊपर आक्रमण हो, पार्टी ऑफिस दखल करना हो, नहीं होगा। अगर कोई भाजपा करे तो उसको माने एक्सपेल किया जाएगा पार्टी से। ये हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं। इसके बाद अगर कोई आता नहीं है एक्स मुख्यमंत्री का घर में, तो यही प्रमाण होता है कि तृणमूल अब टूट गया, खत्म हो गया। काफी गोजोतीगार को तृणमूल का एलओपी बनाया गया है लोकसभा में, क्या कहेंगे? अब काकुली जी को बनाए या अभिषेक को बनाए या दूसरे किसी को बनाए, ये हमारा कोई कंसर्न के विषय नहीं है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अच्छा ऑपोजिशन हो, वो सेंटर में हो और यहाँ हमारे वेस्ट बंगाल असेंबली में भी हो, क्योंकि ऑपोजिशन रहना बहुत इम्पोर्टेंट बात है डेमोक्रेसी में। हम लोग वो सरकार नहीं है पिछला सरकार के तरह कि माइक बंद कर देंगे, टाइम से बोलने नहीं देंगे, मार्शल से पूरा उठाकर फेंक देंगे, सस्पेंड कर देंगे महीनों के महीनों। हम लोग वो नहीं करेंगे छचरापन। हम लोग चाहते हैं एक अच्छा सॉलिड ऑपोजिशन हो, जो सरकार अगर कोई खराब करे, भूल करे, गलती करे, बोलिए अब, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम करे तो वो भी अब अच्छा बोलिए। ऋतुव्रत बनर्जी जो एक बयान सुबह में दिए हैं कि उनसे कई विधायक और भी टीएमसी के, पुराने टीएमसी के विधायक बात कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं और उनको कोई समस्या नहीं है, वो अच्छा सपोर्ट पा रहे हैं। क्या बोलेंगे? देखिए, ऋतुव्रत बनर्जी अच्छा सपोर्ट मिले उनको कि और ABCD किसी तृणमूल कोई लीडर को मिले, मुझे कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी आप संविधान वाइज उनके साथ संख्या है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहे, लेकिन मुझे इसमें कुछ विषय बताना नहीं है, क्योंकि उनका कुछ विषय हम लोग देखे थे और महिला होके हम उसको समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन वो अलग बात है, मेरा व्यक्तिगत कमेंट इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अच्छा एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। कालीघाट की टीएमसी पार्टी, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो टूट रहे हैं, निकल रहे हैं वहां से, ऐसा खबर आ रही है। इसमें भी हमारा कोई विषय नहीं है। जो पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो पार्टी का नेतृत्व कभी सम्मान नहीं दिया भारत का संविधान को, जो देखिए हार जीत होता है राजनीति में, लेकिन कुछ कुछ विषय आप नहीं कर सकते हैं। जो ममता बनर्जी 2 दिन पहले भारत को खींचकर बांग्लादेश का विषय में बोले हैं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होकर हम लोग संविधान में हाथ रखकर कुछ प्रॉमिसेस किए हैं। आप नहीं बोल सकते, आप नहीं BSF को अपमान नहीं कर सकते, आप भारत को प्रश्न नहीं कर सकते, हमारा सेंट्रल फोर्स को आप नहीं कर सकते प्रश्न। जब पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, पहलगांव हुआ, आप बार बार किए हैं, आप बार बार आप प्रमाण किए हैं कि आप देश विरोधी है, देश प्रेमी नहीं है। तो कुछ विषय है जो पार्टी का बेसिक ये ज्ञान नहीं है कि पार्टी को भारत में किस सम्मान से चलाना है और किसको किसको आपको चेयर का सम्मान देना है, तो वो पार्टी गई।
स्वरूप विश्वास को अरेस्ट किया गया और कुछ डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनके जो क्लब है स्मृति संघों से, ये सरकारी जो ग्रांट है उसके डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। देखिए, आज आपको ये समझना है कि बंगाल के लोग जो ह्यूज मैंडेट से भाजपा को लाए हैं, नया सरकार को लाए हैं, क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं ताकि जो 15 साल अत्याचार, दुर्नीति, लूट, करप्शन हुआ है वो फिर से हम लोग नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आज स्वरूप विश्वास जैसे लोग, आज शौकत मुल्ला बोलिए, आज जहांगीर खान बोलिए, आज विभिन्न नेता तृणमूल के ऊपर से लेकर नीचे तक आज अरेस्ट हो रहे। तो ये पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक चाह रहे, जनता जनार्दन, लास्ट वर्ड जनता बोलेंगे।